Good morning, children. Very good morning. So, today I'm once again here to start a very wonderful poem. The name of the poem is here, The Road Not Taken. This poem is written by one of the most romantic poet, Robert Frost. Robert Frost. He was born on 26 March 1874 and died on 29 January 1963 at the age of 88. At the age of 88. Robert Frost was widely known for realistic depictions. What do you mean by the realistic depictions? रियलिस्टिक डिपिक्शंस का मतलब होता है सजीव चित्रण। क्या होता है? उनकी कविताओं को पढ़ोगे ना, जब आप क्लास 10 में चले जाओगे, डस्ट एंड स्नो, फायर एंड आइस पढ़ोगे, तो उसकी जो चित्रण थी, यानी रियलिस्टिक डिपिक्शन, सजीव चित्रण थी, ऐसा लगेगा कि उसकी जो पोम है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है वो रियलिस्टिक चीजों को बता रही है, रियलिस्टिक चीजों को उजागर कर रही है, राइट? He has written numbers of poems, right? But when you read his poem, now you can get and you can learn very deeply. You can learn from his poem. Did you understand? So it was about the poet here. Now come to the poem. The road not taken, it means you can say decision making in your life. Decision making in your life. Here the poet Robert Frost, he is standing, but he has a totally confused. Why he is totally confused? It's just because when he was standing nearby a forest, middle of the forest, he फाउंड टू रोड्स. उनको क्या मिलती है? दो रास्ते मिलती है. द फर्स्ट वे एंड द सेकेंड वे. ओके, द पोएट टेल्स अस हियर, लाइफ इन्वॉल्व्स चॉइसेस वेयर टेकिंग वन पाथ मीन्स ऑप्शंस, मीन्स foregoing another. This decision shapes our future. पोएट यहां कहना ये चाहते हैं कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो तो वो डिसीजन आपके फ्यूचर में वो काम करती है. You are in class 9, right? When you move in class 10, and after passing the matriculation examination, you will be having three decisions. First, whether you will be choosing for yourself as a IAS student, means Inter of Arts, whether you will be choosing ISC as a student of Inter of Science, and whether you will choose ICOM as a student of Inter of कॉमर्स. आपने बचपन में बहुत सारी चीजों को सोचा होगा. आ रहा है समझ में कि नहीं? कि हम कोई कहा होगा, अपने आप में सोचते होंगे कि हमें डॉक्टर बनना है, कोई अपने आप में कहता होगा कि मुझे इंजीनियर बनना है. तो वही होता है डिसीजन मेकिंग चॉइसेस इन योर लाइफ. डिड यू अंडरस्टैंड? तो एक डिसीजन ऐसा डिसीजन है अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में, वो डिसीजन आपको जिंदगी में आपको महान बनाएगी. आपको बनना था इंजीनियर, आप बन गए डॉक्टर. तो ऐसा नहीं ना कि एक नाव पे पैर रखेंगे फिर दूसरे नाव पे भी पैर रखेंगे तो क्या हो जाएंगे हम लोग कहां गिर जाएंगे ना, पानी में गिर जाएंगे कि नहीं गिर जाएंगे. तो उसी प्रकार से आपको कठोर डिसीजन लेना है. यहां पे रॉबर्ट फ्रोस्ट कहते हैं. डू यू अंडरस्टैंड? ओके. This well-known poem is about making choices. Obviously, as I have written over here, this well-known poem is a making decision in your life.
and the choices that shapes us. When you make choices in your life, yes, your choices makes and shapes your future. Makes and shapes your future. Robert Frost is an American poet, as I have already told you, who writes simply but insightfully and common ordinary experiences. रॉबर्ट फ्रोस्ट एक अमेरिकन कवि हैं जो बहुत ही सिंपल वे में लिखते हैं, लेकिन वो हमेशा उनकी पोम से आप डीपली जाओगे तो उनकी बातों को समझोगे कि कहीं ना कहीं वे सजीव चित्रण की बात कर रहे हैं। वो अपने आप में कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि जिंदगी में आगे आपको बढ़ना है, आपको डिसीजन लेना है, आपको परफेक्ट डिसीजन लेना है। ये नहीं कि आपने साइंस चूज किया, आपको मन था आर्ट्स पढ़ने का, आपने जबरदस्ती साइंस ले लिया। आपको पढ़ने का मन था कॉमर्स, आपने क्या कर लिया, साइंस ले लिया। तो आपका डिसीजन जो है हमेशा आपको महान बनाती है, आपके फ्यूचर को सेव करती है। आ रहा है समझ में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके। Robert Frost, one of the most romantic poets, just like William Wordsworth, just like John Keats, Stephen Spender, right? Okay, now come to the first stanza of this poem. Look in your book. Okay. The two roads diverged. What is the meaning of diverged? Separated. दोनों अलग अलग है ना। यहां पे मैंने दो रोड अलग अलग है कि नहीं? यहां पे in a yellow wood and sorry I could not travel both. Here the poet Robert Frost says that I am standing in a forest. The poet, where he was standing, वो कहां खड़ा थे? जंगल में। Where, कहां पे? वो क्या कहते हैं? The two roads diverged in a yellow wood. एलोवुड का मतलब क्या होता है? पीली पीली जो है वहां पे पत्तियां वो रखी हुई थी वहां पे। कहां पे? रोड पे। जैसा ऑटमन सीजन में जब सारी पत्तियां जो क्या होती है, झड़ जाती है, तो पत्तियां क्या हो जाती है? पीली हो जाती है। वो कहते हैं एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। इमेजिन्स इफ एनीवन टेल्स यू या इफ आई टेल यू to go and travel both the roads, can you travel in a one time both the roads? Can you travel here? एक बार में क्या आप दोनों रोड को ट्रैवल कर सकते हो क्या? So the poet was having so many confusions that which road I have to choose? Which road I have to choose? I have to choose this road, this way, yeah, that way. So it is a what decision making choices for the poet, right? Okay, and be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could. Look down means look carefully, looked carefully. And here is one more meaning, as far as I could का मतलब होता है till, means till possible, जितना संभव हो सके, जितना संभव हो सके। Long I stood का मतलब होता है stood for a long time, देर तक क्या होना? खड़ा होना। क्यों खड़ा थे पोएट वहां पे? पोएट वहां पे रॉबर्ट फ्रोस्ट इसलिए खड़ा थे क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कौन सा रास्ता को जो है चूज करना है। आ रहा है समझ में? हमें इस रास्ते से जाना है या इस रास्ते से जाना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों, जब आप मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में चले जाओगे ना, तो आपके पास 3 वे होंगे। पहला, जैसे कि मैंने पहले बताया, आईए इंटर ऑफ आर्ट्स। दूसरा क्या बताया मैंने? आईएससी इंटर ऑफ साइंस, आई कॉम इंटर ऑफ कॉमर्स। अब उसमें आपको चूज करना है कि मेरे लिए कौन डिसीजन मेकिंग होगा, मैं उसके लिए क्या कर पाऊंगा। आ रहा है समझ में? सो द पोएट टेल्स हियर, and be one travel long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. और जो रोड जो था बिल्कुल मुड़ा हुआ था, जिसमें काफी ज्यादा क्या था? अंडरग्रोथ का मतलब होता है स्मॉल प्लांट्स। अंडरग्रोथ मींस
स्मॉल प्लांट जो है इधर उधर लगे हुए थे, ऐसा कोई उस रास्ते पे कोई ट्रैवल नहीं किया हुआ था, बहुत ज्यादा लोग ट्रैवल, लेस ट्रैवल वे था वो, क्या था, लेस ट्रैवल वे। गेटिंग माई पॉइंट? सो डिड यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टांजा ऑफ दिस पोएम? Okay, come to the second stanza. Then took the other just as fair. Just as fair, the meaning means equally good. Equally good. उसे लग रहा था कि दोनों रास्ते एक जैसे हैं, दोनों रास्ते क्या हैं, एक जैसे हैं। And having perhaps, perhaps means maybe, perhaps का मतलब क्या होता है, maybe the better claim, better claim means the meaning of better claim means better reason, बेटर रीजन का मतलब बेहतर कारण, बिकॉज इट वॉज अ ग्रासियर एंड वांटेड वेयर। वांटेड वेयर, द मीनिंग ऑफ द वांटेड वेयर यू हैव टू लुक इन योर बुक। वांटेड वेयर मीन्स यू कैन से लेस ट्रैवल्ड, जिसपे बहुत ज्यादा लोग गए नहीं हो। आप जंगल चले जाओगे तो देखना कि एक रास्ते ऐसे बन जाते हैं, बरसात जब आती है तो फिर वही रास्ते में घास फूस आ जाती है, लिटिल प्लांट्स, राइट। अब जैसे लोग जाना, जो जब जानवर जाते हैं, जब ह्यूमंस उस रोड में जो है ट्रैवल करने लगते हैं तो रास्ता क्या हो जाता है, वो फिर से वो रास्ता ही बन जाता है। तो पोएट यहां कहते हैं देन टुक द अदर जस्ट एज अ फेयर मींस इक्वली द रोड वाज इक्वली गुड, बोथ द रोड्स वर इक्वली गुड एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। बेटर क्लेम मींस यू कैन से बेटर रीजन, राइट, बिकॉज इट वाज अ ग्रासी एंड वांटेड वेयर। एक जो रोड था उसमें घास जो लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि इट वॉज अ लेस ट्रैवल रोड, इट वॉज अ वेरी लेस ट्रैवल रोड। दाउ मीन्स हाउ एवर, दाउ मीन्स हाउ एवर, as for that the passing there had owned them really about the same. When the poet looking towards the both road, right, so what could he see? It was just like the same, it was just like the same. बच्चों, आपके भी डिसीजन मेकिंग में ऐसा लगेगा कि नहीं ये चीज ठीक है, नहीं ये चीज ठीक है, और जब आप कॉन्फिडेंटली कोई डिसीजन को लोगे और जब आप आपके फ्यूचर में बहुत सारी चीजें जब पॉजिटिव मतलब घटने लगती है तो आप कहते हो अपने आप में, यार मैंने अच्छा डिसीजन लिया, तभी आज मैं यहाँ पे पहुंचा। तो पोएट भी यही कहते हैं, ही वॉज अ ट्रेमेंडस, एक्चुअली ही वॉज नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम, बट ही वॉज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट द बोथ रोड्स, कौन सा रास्ता को हमको चुनना है। वो कहते हैं कि मुझे वही रास्ता चुनना है जहां पे लोग बहुत कम गए हो, जहां पे लोग, जिस रास्ते से लोग बहुत कम गुजरे हो, राइट। Okay, thou as far the passing there and home the really about the same, almost same, really about the same means almost same। दोनों रास्ते जो है जब पोएट देखते हैं तो दोनों रास्ते जो है वो बिल्कुल जंगल की ओर गई हुई है, पूरा मतलब जंगल की ओर, ठीक है। अब मान लो ये भी एंड हो रहा है, ये भी एंड हो रहा है रास्ते में, तो क्या आपको इस रास्ते में क्या बहुत सारे ऐसी जगह भी देखते हैं कि ये रोड को मैंने, ये गलत रोड था, तो आप सोचोगे कि नहीं ये रोड अच्छा नहीं है, दिस रोड इज नॉट अ वेरी स्मूथ रोड एंड इट्स हैविंग वेरी स्टोन्स, लीव्स and so many grass, and when you think about this road, this is a very smooth road, there is no any concrete, there is no any stones, means barefoot without not having any kinds of slipper you can directly go through this way, right। लेकिन पता चला कि इस रोड से मैंने ट्रैवल किया और वहां पे एंड हो गया, लेकिन फिर भी अगर वापस आना है तो इधर से ही आना है, ये नहीं कि उधर से रास्ता है। जंगल में ऐसा होता है, जंगल में आप चलो डेंस फॉरेस्ट में जब चले जाओगे ना तो रास्ते बहुत सारे होते हैं जहां पे हम लोग गुम हो जाते हैं, हम लोग क्या हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, मतलब हमें पता नहीं चलता है कि रास्ता हमारा कौन सा होगा, फिर वहां से आते हैं, फिर इस रास्ते से जाते हैं, ठीक है। तो पोएट यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में देखो, यहाँ पे लुक इन द थर्ड स्टांजा। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले in lips no step had trodden black. Here the poet in the stanza number 3 says that
and both the morning equally lay. Obviously, equally, both the road for equally the same, equally the same. In leaves no step had trodden black. In one way, the poet says here, in this way, means nobody has, it is a very less travel road. इसमें से लोग जो है बहुत सारे लोग नहीं गए हुए हैं, इस रोड में बहुत सारे लोग नहीं गए हुए हैं. वो कहते हैं ओ आई कीप कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे. वो पोएट जो है वो डिसीजन ले लेते हैं कि हमें इस रास्ते पे जाते हैं, आज जाऊंगा, आई विल स्टार्ट माई जर्नी, आई विल स्टार्ट my journey from this way and I kept the second one for the next day. Second one for the next day. वो कहते हैं कि हम इस रास्ते से अभी जा रहे हैं और नेक्स्ट टाइम मैं इस रास्ते से मैं जाऊंगा. राइट वो डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे इस रास्ते से जाना है. गेटिंग माई पॉइंट? Oh, I keep for the first for another day at knowing how where leads on to way. I doubted if I should never come back. There is so many doubts when you actually when you are standing in a dense forest. Dense forest means बहुत जहाँ पे जंगल झाड़ है. When you are standing over there and if you are having confusion while choosing the roads, when you go from this way, suppose you are the poet, means you are the Robert Frost, right? You are standing here and you have to choose. You have to choose whether you have to go from this way or that way. So Robert Frost here, the poet, chooses to travel this way and he kept this way for the next day. वो इस रास्ते को छोड़ देते हैं किस लिए? For the next day. For the next day. Did you get it? Okay. वो यहां पे और कहते हैं at knowing how many, being क्या होता है? aware. आप जानते हैं उस रास्ते में कि आगे रास्ता है लेकिन मैं फिर वापस कैसे आऊंगा? हो सकता है आप उस जंगल में जाते जाते कहीं आप खो जाओगे. पोएट को भी ऐसा ही लग रहा था कि ये रास्ता मेरे लिए आसान होगा कि ये रास्ता आसान होगा. Did you get it? पोएट ये भी कहना चाहते हैं कि यार I doubted if I should never come back. Poet was having so many doubts. Suppose if I choose this road, the poet says here, if I choose this road and if I just cross till middle of the way, right, and if I come back again, if I want to come back again, then will I be able to return from the same way or not? He was having totally doubt, right? कभी कभी आपको भी डाउट होता है, अरे ये रास्ता जा रहा है, क्या इस रास्ते से फिर मैं दोबारा में आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा? जंगल में कभी गए हो कि नहीं? हाँ. आगे देखो. Come to the last stanza of this poem. I shall be telling this with a sigh. Sigh means deep breath. Deep breath. वो गहरी सांस के साथ वो कहते हैं पोएट, somewhere edges some and edges hands. इन फ्यूचर की बात करते हैं वो कि मैं फिर आऊंगा इस रास्ते से और ये रास्ता को मैंने पास किया, ट्रैवल किया, इस रास्ते को मैं आऊंगा अपने फ्यूचर में. वो कहते हैं देखो यहाँ पे somewhere edges and edges hands. इसका मतलब many years later, बहुत वर्षों के बाद, in the poet is talking about his future, right? Two road diver in a wood and I took the one less traveled by. Here the poet says that two road diverged. This is the first road and this is the second road. So the poet chooses, means the Robert Frost chooses the first, this way to travel, and when he has a capped for the next day, for upcoming future. Did you get it? For upcoming future, but
Poet was totally having so many confusion. Why he was having confusion? It's just because this road was less traveled. This road was less traveled. ये जो रास्ता था बहुत ही लोग यहाँ पे आवागमन लोग बहुत कम किए हुए थे. पोएट वही रास्ते से क्या करते हैं, अपनी जर्नी को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. You do understand? Okay. I took the one less traveled by and that has made all the difference. That has made all the difference. और ऐसा जब पोएट जो वहां से जब जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि रियली इट्स अ टोटली अ स्ट्रेंज experience for the poet. The poet here, William Wordsworth, wanted to tell us that whenever you are choosing anything in your life, you have to be confident. You have to be confident. आपको confident रहना है when you make your own decisions. When you make your own decision, don't fear while choosing anything in your life. कभी डरना नहीं है कि आप कोई चीज को क्या मतलब चूज कर रहे हो. पोएट भी अगर चाहते तो ये रास्ते पे चल जाते, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ट्रैवल किए हुए थे, लेकिन पोएट कहते नहीं, मुझे चाहे whatever it may be, whatever it may be, चाहे जो भी कुछ हो, I'll travel from this way. It is this way, this road was a less traveled by the people, by the animals. Did you understand? So the central ideas of this poem is, my dear student, that this poem is related to the decision making in your life. Decision making in your life. You have not to be afraid when you make any decision in your life, but your decision must be perfect. Your decision must be perfect, and your decisions can make your life and can shape your life, right? So I have these books of William Wordsworth, and in this book more than 100 poems are here. So next day I would be actually also teaching you one of the greatest poem that is written by William Wordsworth. That is written by William Wordsworth. Did you get it? So my dear student, how was the poem today? एक चीज आपको याद रखना है बच्चों, कि जब भी कोई डिसीजन की बात आती है तो आपको परफेक्टली और बिना डरे हुए इस डिसीजन को लोगे आप. अगर आप उस डिसीजन को अगर सही चूज नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारी कंफ्यूजन आने वाली है, बहुत सारी उतार चढ़ाव आने वाले हैं, क्योंकि आपने कोई चीज को चुन लिया है, कोई चीज को चूज कर लिया है, अब वहां से फिर आप आना चाहते हो तो आप नहीं आ सकते हो. ठीक है, इसलिए यू हैव टू मेक अ स्ट्रांग डिसीजन इन योर लाइफ. You have to make a strong decision in your life. Did you get it? So it is the end of the poem. See you in the next class. Thank you.